यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਬਵਾਲ 'ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ यूपी पुलिस ने लिया हिरासत ਵਿੱਚ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ, ਅੱਜ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ। ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਰਜ਼ੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਦਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ। ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ। 17 ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਿਆ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ यूपी ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਹਰਗਾਂਵ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਹਰਗਾਂਵ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾंशु साडे सहयोगी जुड़े ने। तो फिलहाल प्रांशु, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके बाद पूरे देश में गुस्सा भी है और सियासत भी गरमाई हुई है। क्या कुछ जानकारी प्रियंका गांधी को लेकर कल रात जो कोशिश उनकी ओर से की गई लखीमपुर जाने की? देखिए, कल रात से ही सियासी पारा खासा गर्म है और इस वक्त प्रियंका गांधी को अब से करीब 1 घंटा पहले सीतापुर का जो लखीमपुर से करीब 60 किलोमीटर पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त मैं ठीक उस गेस्ट हाउस के सामने हूँ, पुलिस गेस्ट हाउस के सामने हूँ, जहाँ पर प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है। और गेस्ट हाउस के बाहर धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है, आंदोलन शुरू हो गया है। विपक्ष के जो और दूसरे बड़े नेता हैं, आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं,
इन नेताओं को घरों से निकलने नहीं दिया गया है। लखनऊ में ही अपने घरों में इनको नजरबंद कर दिया गया है। फिलहाल मौका वारदात पर जहां पे घटना हुई वहां पर जो नेता पहुंचे हैं वो राकेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के नेता। उनको प्रशासन ने जाने दिया है। राकेश टिकैत ने किसान नेताओं से, वहां पे किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की है। मामला तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल जो है स्थितियां समान है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट है कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मुकदमे की स्वीकृति दी है और ये मुकदमा फिलहाल रजिस्टर हो गया है। देखना होगा कि क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या किसी की गिरफ्तारी होती है। लेकिन फिलहाल जो सभी बड़े विपक्षी नेता हैं उनको लखीमपुर जाने से रोका गया है। प्रियंका गांधी हिरासत में है, सीतापुर में है। दूसरे तमाम बड़े नेता अपने घरों में नजरबंद हैं और लखीमपुर में ही भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय काबीना मंत्री, उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। बिल्कुल, तो प्रांशु ये बहुत वाकई में ये बड़ी बात है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि मांग तो बर्खास्त करने की जा रही है, लेकिन कार्रवाई तो कह सकते हैं कि जरूर शुरू हुई है। हालांकि बेशक अजय मिश्रा की ओर से अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस हादसे में भाजपा के जो वर्कर हैं उनकी भी मौत हुई है, उनके ड्राइवर की भी मौत हुई है, और उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, आज इस पूरे घटनाक्रम में जो मौतें हुई हैं उसमें से 4 किसानों की मौतें हुई हैं। 2 अन्य लोग भी हैं जो कि संभवतः उन गाड़ियों को चला रहे थे जो गाड़ी भाजपा के कार्यकर्ताओं या नेताओं को बिलोंग करती थी और कार्यक्रम से लौट रही थी। तो निश्चित तौर पे जो हानि हुई है वो दोनों पक्षों की हुई है। लेकिन मुख्यतः किसानों का आरोप यही है कि अजय मिश्रा के परिवार से उनके लोगों ने जानबूझ करके आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई, जिसके बाद वहां पे हिंसा भड़की। अजय मिश्रा ने फिलहाल कल न्यूज 18 से बात करते वक्त अपनी सफाई दी थी और ये कहा था कि उनके बेटे किसी भी तरीके से इस घटना में शामिल नहीं है। अगर वो वहां पर होते तो जिंदा नहीं बचते। उन्होंने हर तरह की कार्रवाई में सहयोग देने की बात भी करी थी। लेकिन पूरी रात जिस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो घटना जहां पर हुई है वो घटना किसान बाहुल्य क्षेत्र है। लखीमपुर एक किसान बाहुल्य जिला है। आसपास के जिलों में किसान बहुत मजबूत और बड़ी संख्या में है। तो लिहाजा सरकार को भाजपा के अंदर बेचैनी थी और उसी बेचैनी का नतीजा है कि तमाम सफाई आने के बाद भी देर रात अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। तो एक भाजपा शासित राज्य में भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाना निश्चित तौर पर इस बात का इशारा है कि सरकार किसी भी तरीके से इस मामले को ठंडा करना चाहती है, किसानों के गुस्से को शांत करना चाहती है और इसलिए उसे अपने ही पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में कोई संकोच या कोई देरी नहीं करी है। बिल्कुल प्रांशु, क्योंकि अक्सर मामले ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं, लेकिन इस बार मामले को ठंडा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है यूपी में इलेक्शन है और इस समय ये बड़ा हादसा सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये साफ तौर पर बीजेपी देख सकती है। इसीलिए शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि तुरंत बीजेपी की ओर से ऐसी कार्रवाई की कर दी हो। हालांकि बेशक अजय मिश्रा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हादसे वाली जगह पर ना तो वो मौजूद थे, ना उनका बेटा मौजूद था, और ये भी कहा जा रहा है उनकी ओर से कि हमला जो है वो किसानों की ओर से किया गया। फिलहाल और अपडेट लेंगे प्रांशु आपसे। शुक्रिया बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो सियासत है पूरी तरह पकी हुई है। प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे सी पर उन्होंने कस्टडी विच ले लिया गया। पर वड्डी अपडेट जो दस दईए कि अजय मिश्रा ते उन्होंने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਮਿश्रा ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ यानी कि हुण सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने कुर्सी के उपर भी खतरे की जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। यूपी के इलैक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी ये भली भांत समझती है कि पहले ही किसानों का मुद्दा वड्डे पद्धर ते गरमाया होया है, तो अजिहे दे विच जेकर किसानों की गल ना सुनी गई, किसानों की मंग ना मनी गई तो किसान तो पहले ही बीजेपी के खिलाफ ने, तो होर ज्यादा गुस्सा किसानों का देखने को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी ने तुरंत मौका संभालदियां
जो अजय मिश्रा केंद्रीय राज मंत्री ने तो उन्होंने दे बेटे दोवां ते FIR जो दर्ज कर दी गई, दोवां ते कतल का मुकदमा दर्ज कर दिता गया। हालांकि बेशक अजय मिश्रा बार-बार ये दावा कर रहे हैं कि हादसे वाली जगह ते ना तो वो मौजूद सी, ना उन्हों का बेटा मौजूद सी। जेकर उन्हों का बेटा मौजूद हुंदा तो उत्थों जिंदा ना आंदा। ये भी उन्होंने वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि किसानों के वल्लों काफिले ते हमला किया गया ते नाल ही उन्होंने कहा कि सिर्फ किसान नहीं मारे गए इस काफिले दे विच, इस हादसे दे विच बीजेपी दे जो वर्कर सी ते उन्हां दा ड्राइवर सी वो भी जो जख्मी होया है। हालांकि इस हादसे के पिछे जो है वो किसी तरह का अपना हाथ ना होने की गल अजय मिश्रा के वलों कही तो जा रही है, पर जिस तरीके दे नाल फिलहाल ये मामला पखिया होया है, बीजेपी ने तुरंत एक्शन लैंदियां अजय मिश्रा और उन्हां दे बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिता है। लोगों को बुलाओ, तुम लोग ये क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या? ये क्या है? नहीं, क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। हाथ उठा रहे हैं। छुपाए हुए ना आप इसके कायरों की तरह। मैम प्लीज आपकी सुरक्षा की भी मैडम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। आपका नाम नोट किया है, आप सबका नाम नोट किया है। ठीक है, अगर आप हमें लेकर जाते ले जाइए, आप हमें बचा दीजिएगा ना, लेकिन एक महत्वपूर्ण पद है इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा हमारे क्षेत्र में आइए कल की हमारी ਤਾਂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ने लखीमपुर जाने की कोशिश की पर रस्ते में ही उन्होंने कस्टडी में ले लिया गया। लखीमपुर कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ उधर केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा दावा कर रहे हैं कि ना तो मैं हादसे वाली थां ते मौजूद सी ते ना ही मेरा बेटा। इत्थों तक कि उन्होंने तो किसानों ते जो काफिले के उपर हमला करने के इल्जाम लगाए ने। कहा हमले च कार का ड्राइवर भी जख्मी हो गया सी ते जख्मी होने कारण ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया। उन्होंने अपने बेटे वालों गड्डी चलाने के इल्जामों को खारिज किया है ते सीधे तौर पर कहा कि हादसे वाली जगह ते ना तो मैं मौजूद सी अते ना मेरा बेटा। तो दस दईए कि जिथे कल ये हादसा होया है वो थां है जिथे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का प्रोग्राम तय किया गया सी, पर किसानों के प्रदर्शन कारण ये प्रोग्राम बदल दिता गया। किसान उत्थे हैलीपैड के उपर बैठे हुए सी धरना लगा के, पर उस तो जो जानकारी मिली तो जो केशव मौर्य सी उस सड़की मार्ग के राही लखीमपुर पहुंचे। यह हादसा उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ते केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा के काफिले नूं कालियां झंडियां दिखाउंदे होए वापरिया। लखीमपुर दे विच कई सरकारी योजनावां दा नींह पत्थर दे लई पहुंचे हुए सी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, पर इत्थे हालात उस वेले बिगड़ गए जदों प्रदर्शन करन दे लई किसान पहुंचे, पर उत्थे उस तो बाद हालात इस तरह के बन गए। कहा जा रहा है कि दरड़ दिता गया गड्डी दे नाल ते ओ गड्डी दे चलाउण दे इल्जाम अजय मिश्रा दे बेटे ते लगे ने, पर फिलहाल अजय मिश्रा दे बेटे दे नाल अजय मिश्रा ते भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थीं, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़-फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई
मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब ये झूठ घटना है और हमारा बेटा जहाँ पर कार्यक्रम था वहाँ 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर उपस्थित था। हजारों लोगों की भीड़ वहाँ होती है, पुलिस और प्रशासन के लोग होते हैं और सारे फोटो वीडियो ऐसे सारे प्रमाण हमारे पास हैं। लेकिन लगातार आरोप लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से कि आपकी गाड़ी उधर से गुजरी जबकि वो आपका रूट भी नहीं था, आपका नहीं हमारा, और उसके बावजूद वहाँ से काफिला निकाला गया। नहीं वो हमारी गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे कार्यकर्ता हमारी गाड़ी और दूसरी 2-3 गाड़ियाँ लेकर के वहाँ पर रिसीव करने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पे गए थे। जब उनको ऐसी जानकारी हुई कि रूट डाइवर्ट हुआ तो चूँकि विरोध उन लोगों का हम लोगों से था तो मैं सोचता हूँ, आपको तो पता था कि वहाँ पे उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उस जगह से गुजरना क्या उस टाइम नहीं वो प्रोटेस्ट लगातार नहीं चल रहा था, वो आज ही वो लोग इकट्ठा हुए थे और उनका उद्देश्य यही था कि जब हम लोग निकलेंगे तो वो काले झंडे दिखाएंगे, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने अपना रूट डाइवर्ट कर लिया था। लेकिन आम लोगों की गाड़ियाँ आ जा रही थी, वैसी कोई समस्या वहाँ पर नहीं थी। उसी क्रम में वो आगे खड़े थे, जब उनको पता चला रूट डाइवर्ट हो गया तो उधर जाने वाले थे, तो उसी दौरान उन लोगों ने हमला किया उन गाड़ियों पर। अभी बातचीत करेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं। डिमांड तो ये है कि जितनी भी हत्याएं हुई ये 8 के आसपास हो रही है, अभी 9, तो उसकी जिम्मेदारी इसी की सब, ये मंत्री की जिम्मेदारी है, उसी ने कार्रवाई है, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ। एफआईआर दर्ज हो चुका है, दर्ज हो चुका, देख करेंगे, अब बातचीत करेंगे सब। एफआईआर दर्ज हो गया है, आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? तो गिरफ्तारी तो भाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी और भी होगा। बैठे अभी तो यहाँ आए हैं अभी। वो देश के केंद्रीय गृह राज्य, हाँ पता है कि गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, हाँ गृह राज्य मंत्री, बड़े ओहदे पे हैं, हाँ बड़े जिम्मेदारी। ओहदे पे हैं। तो गिरफ्तारी आपको लगता है कि पुलिस करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, कानून तो सबके लिए है। वो किसानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो आरोप किसानों वो पे कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे, बब्बर खालसा से तार जोड़ रहे हैं। अच्छा चलो बैठे, हम क्या कहीं जा रहे हैं, दिन में बता देंगे। वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे। आगे की अभी जिस तरह से बयान दे रहे वे और उल्टा एलिगेशन लगा रहे किस्म से, वो पिछले 10 दिन से ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।